Good morning, sir. You are welcome to ANI's this news brief. So please give your first reactions on the news that Mehul Choksi has been arrested in Belgium on India's request. Sorry. It's a really, really great news. We are very glad, particularly not only for India and for all those who got cheated cheated by Mehul Choksi in India. It's unbelievable and how he got caught in Belgium. So it's very important now to not only get him back to India, but also it's most important is to get back the money he looted. Ultimately, that is what India needs, apart from getting Mehul Choksi back home. So I hope government of India has identified where he stashed away his money, and it will be brought back to India. It has been long battle since last 7 years. People like you and other whistleblowers who were continuously trying to get him back to India and the money which he looted back to the people who deserve that money. So it has just started now, but you think it will be a long time taking procedure? Obviously, it is not going to be easy task. Extradition is not an easy task, and he is full of his wallet is full, and obviously he will employ the best of lawyers in Europe to avoid his extradition, like what Vijay Mallya has been doing. I don't think so. It is going to be easy task for India to get him back as such. As you told that he will employ his lawyers. So we have got his lawyers' reaction also, and they are saying that they will try everything in the legal book that they will get him bail there, and they will oppose the extradition also. So how do you see the legal procedure being initiated by his lawyers? Obviously, he will do it. He has a good example of Vijay Mallya, who has been doing it for years now. So even in when he was caught in Antigua and other island, he could manage to get out of it because he has a fleet of lawyers. I don't think though it's going to be so easy for Indian government to get him. But I wish and I hope that this time government will succeed. Hari sir, we all know about the amount. It's 13,800 crores. But if you can just elaborate on the number of victims who were affected by this scam, and they are still affected. So how was it a humanitarian crisis for the all depositors who lost their money? No, it's according to my best of knowledge, at least 100 of franchisees have got cheated by him, and most of them have put up a cases in various cities in India. But what can they do now? Because even I got his arrest warrant, everything from Bangalore police, but nothing happened. He's smart enough to get away from the clutches of law. He has a big booty of money. He can do anything. Recently, we have got an extradition of Tahabur Rana, who is a terror accused, and now we are in process to get an extradition of a scamster of a bank frauder. So how do you see India's legal system working and India's enforcement agencies working to get all the criminals who are away from India to get them back? How do you see this attempt from government of India? The legal system in India is very great, undoubtedly, but the process we have to follow when we are dealing with a foreign country depends on the country that we are dealing with. You see, the laws and the legal systems are going to take place, take some lot of time, but I hope so they can get him back. That's the only hope, because he's not going to take it easy. He has a fleet of lawyers from the best of the world. First of all, he has so much money. It's only in 2016 only he stashed away at least $2 billion. So I don't know how much he must have multiplied that. हरी सर, अब आपसे हम हिंदी में भी बात करना चाहेंगे हिंदी के दर्शकों के लिए। जो सुबह सुबह आज खबर आई है कि मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है बेल्जियम में, और अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि उसे जल्दी ही भारत में एक्स्ट्राडिट करके लाया जाएगा। तो आपकी पहली रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले में, विसल ब्लोअर होने के नाते? पहली रिएक्शन तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। बट उसमें क्या होता है कि वो उसको वापस लाने में कितना तकलीफें होंगे हमको पता नहीं है। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, बट डीलिंग विथ ओवरसीज लीगल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उसमें क्या होता है कि उसको वापस लाने से क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। वो कैसा लाएंगे वो हम बिल्कुल जानकारी नहीं है हमको, पर कहाँ कहाँ उसने पैसा रखा है। ऑफ कोर्स बेल्जियम में उसका मेन बेस था,
तो शायद बेल्जियम में तो नहीं रखा होगा, स्विस बैंक में रखा होगा, किसको पता किधर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लाने के अलावा पैसा लाना बहुत जरूरी है। वो क्या है, आदमी का कुछ वैल्यू नहीं है अभी। अरे सर, उसके वकीलों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पहले उसे बेल्जियम में बेल दिलवाई जाए और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्राडिशन है उसका भी विरोध किया जाए। तो अपने वकीलों की फौज फिर एक बार खड़ी करने को तैयार है मेहुल चोकसी, और पैसा भी खर्च करने को तैयार है अपने आप को इंडिया आने से रोकने के लिए। इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? प्रयास तो करेगा ही, वो क्यों इतना आसान से छोड़ देगा क्या। कोई भी अपने आप को बचाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। बट हम कितना स्मार्ट है उसको लाने में, कितना सक्षम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको वापस लाया जा सके नहीं लाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाए। सर, एक घोटाला हुआ पीएनबी बैंक का, जिसमें कुल 13,800 करोड़ रुपए लेकर के भागे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों मिलकर, ये सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग इससे अफेक्टेड थे, कितने लोगों को इससे परेशानी हुई, बैंक्स को रिवाइव करने में कितना मेहनत लगा, इस बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी साझा करें कि कितना बड़ा स्कैम था इन द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स अफेक्टेड बाय दिस स्कैम, उस पर आप थोड़ी अगर बात करें तो। तो मेरा हिसाब से कम 100 लोग अफेक्टेड है इनका चीटिंग का प्रोसेस से। सब लोगों को मिला के मेरे ख्याल से 100-200 करोड़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो ऑफिशियली नोन फैक्ट है, बट पता नहीं कुछ लोग कैश में डील किए होंगे, हमको पता नहीं उसके बारे में। वो कितना है हमको आइडिया नहीं है। बट वो जो लोगों का ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वो 12,000 करोड़ ही लेके गया। मेरा हिसाब से मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके बारे में, उसके हिसाब से कम 30,000 करोड़ लेके गया वो। उसका डिटेल्स भी मैंने सब एजेंसी को दिया हुआ है, बट उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ। सर, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो भारत से भागे हुए लोग हैं उनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले टेरर एक्यूज तहव्वुर राणा को लेके आया गया है। अब इनिशिएट हुई है प्रोसेस मेहुल चोकसी के लिए। नीरव मोदी की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। तो जो एजेंसीज का काम है पिछले 2-3 सालों में खास करके हम बात करें तो कितना इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं एक्स्ट्राडिशन जैसे मामलों में, और जो फिजिटिव लोग हैं उनको वापस इंडिया लेके आने के लिए? एजेंसीज तो अच्छा काम कर रही है। अनडाउटेडली द वर्क ऑफ इंडियन एजेंसीज हैव डेफिनेटली गॉटन बेटर with our Modi ji government in place. Things are happening much better, much faster. But still, even after having Nirav Modi in London for so many years, we are not able to get him. What is the guarantee? ये मेहुल चोकसी को बेल्जियम से लाएंगे कैसा? इसका कोई गारंटी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे तो लगता नहीं है कि सक्सीड हो जाएंगे इतना आसान से। अरे सर, अभी ये शुरुआत है और आने वाला समय बहुत लंबा रहने वाला। पहले 7 साल तक, हम यहाँ तक पहुंचने में हमको 7 साल लगे। अब यहाँ से उसको एक्स्ट्राडिट करके लेके आना, आप कह भी रहे हैं कि मुश्किल है। तो आप लोगों के लिए भी एक लड़ाई अब शुरू हो रही है। जो भी आपके पास सबूत है या जिस तरह के भी आपके कोरोबरेशन होंगे, वो आप एजेंसी से और बाकी लोगों से शेयर करने को तैयार है आने वाले टाइम में उसको वापस लाने के लिए? अरे पूरा शेयर करा हुआ है, उसका फाइल पूरा बना हुआ है, हर जगह में बना हुआ है। मैंने तो उसके बारे में पूरा उसका अरेस्ट वारंट भी मेरे पास है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास है। बहुत लोग हैं जो अफेक्टेड है अभी। जब वो इंडिया में ला ही नहीं सक रहे तो वो गिव अप हो गए हैं। अगर जी। अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल सब लोग मदद करने के लिए जरूर तैयार होंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टॉकिंग थैंक यू सर। विद ANI।